The language of the forest is of nurturing, growth, and of healing. Here, life and death are equally balanced. Over time, we humans have forgotten where we come from. Where did the rituals and dances of our culture emerge from? We forget that what we are is an imitation of nature itself. Talley Wildlife Sanctuary, a heritage to the indigenous Apatani tribe of Arunachal Pradesh, and a place for conservation for the Department of Environment, Forests and Climate Change, Arunachal Pradesh. Talley, widely known as Talley Valley by the locals, was officially declared a wildlife sanctuary back in 1995 when the first clouded leopard was recorded in the area. To get to Talley Wildlife Sanctuary, you must first get to Zero Headquarters in the lower Subansiri district of Arunachal Pradesh. The transit camp is at Manipolyang, which is 7 kilometers from the base camp, which is Pange Camp. Pange Camp has all the basic amenities available. It has a forest rest house, tourist information center, an interpretation center, barracks for the staff, and a local kitchen, which is always busy and bustling with activities and always ready with a welcoming fire. To get to the main camp, which is Talley Camp, you have to trek 15 kilometers up into the high elevation of 2,700 meters of dense forest. While you walk these jungle trails, slipping and grappling, after 9 to 10 hours of a vigorous walk, you will be surprised to find the Talley Camp nestled in a pristine location in the valley, just next to a silently flowing river. It has a local kitchen for common use and barracks and a newly constructed log house to host VIP guests. The Talley Camp also has a watchtower from where you can watch the whole view of the valley. At this moment, the Department of Environment and Forest is also trying to explore more parts of the extended Talley Valley. In the recent expedition led by the department and local NGO Ngunu Zero, the department conducted aerial surveys of the wildlife sanctuary and plans to explore more of the unexplored territories of the area. Talley has a very rich biodiversity, from rich flora and fauna to its immense untouched beauty. Balo, he is a forest department staff, and over the years of working with the conservation efforts of the department, he has grown a great liking for collecting orchids. It's like his second calling. अभी तक आज मैं 6-7 ऑर्किड मतलब कलेक्शन किया हूँ. कलेक्शन तो ऐसे मेरा 15-16 है, पर उसमें से जो बाकी सब तो मेरा पास है. फिर भी मेरा पाइप ऑर्किड है जो मेरे पास नहीं है, जो आज नया मिला है मेरे लिए नया है. तो अभी वो मेरे लिए न्यू स्पीसीज हो गया. तो वो मेरे लिए बहुत मतलब अहमियत रखता है, मतलब बहुत खुशी मिलता है जो कभी नहीं मिलती, मतलब जो मेरा पास नहीं है वो चीज मिलने से. और वो जो मतलब जितना भी हम लोग थकता है ना, उधर पहाड़ चढ़ता है, इधर जाता है, उधर जाता है, बहुत थक जाता है, पर कुछ नया मिल जाने से और रिफ्रेश हो जाता है. मतलब खुशी से मतलब वो भूल जाता है क्या हुआ क्या है, इतना तक गया उतना तक गया, वो भूल जाता है. ये मजा है, ये अच्छा है. ओके. Talley Wildlife Sanctuary also has one-of-a-kind orchid conservation trail, which is spread over 4 kilometers of area in Pange Camp. अब ऑर्किड्स की बात करें तो हमारे पीछे ही जो यहाँ पे आज से 3 साल पहले एक ऑर्किड कंजर्वेशन ट्रेल बनाई गई थी, जिसमें अराउंड 180 स्पीशीज जो इस एरिया में मिलते हैं. और इस एरिया से मतलब है मेरा जीरो, याचुली, याजली इस एरिया में मिलते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में. उन्हें लाकर यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया और उन्हें जिसे इन सिटू कंजर्वेशन अब कहते हैं. ऐसा नहीं कि उसे लाके हम एक म्यूजियम की तरह रख दिए हैं. उन्हें लाइव पेड़ों पे लगाया गया ताकि वो उसके ऊपर सेटल हो जाएं, एस्टैब्लिश हो जाएं और फ्लावर करें. Just like Balo, Habung, who also works at Talley Wildlife Sanctuary, he looks after the orchid trail at Pange Camp.
ट्रेल जो ये इसमें जाने से 2 घंटा में जाता है, यानी कि 4 इयर्स का मेहनत है। हम लोग का डीएपो आरएपो को किया, तो यानी कि कुछ एजुकेशन आदमी को यानी से ईजी से देखने के लिए, एक स्पीसीज को उन लोग को तो देखने के लिए जाने से कभी कभी 1 साल में भी नहीं मिलेगा। यहाँ में आके तो 5 मिनट में आराम से मिलके इसको करेगा बोल के इसमें उनका टारगेट था। बाटरफ्लाई देखा तो एक बाटरफ्लाई मिलने से आहा बोलता है, इसमें तो देखने से बस वो इतना खुश होता है। लेकिन एक बर्ड का एक मिलने से वो बोलते हैं एक दिन तो ऐसा बोलते हैं, ऑर्किड का एक चीज़ मिलने से या पाम जो एक मिलने से ऐसा एक मज़ा एक तो अलग से लगता है, या कुछ मिल गया जैसे ऐसा लगता है। लेकिन लोतर जैसा मिला जैसा ऐसा मज़ा से एक्स्ट्रा होता है। Like Habung, all the staff at Talley Wildlife Sanctuary take immense interest in all the activities of conservation of the area. May it be transit from camp to camp, cooking delicious meals for the crew, collecting orchids and samples of plants on the trail, or chilling out at Pange camp by playing a friendly volleyball match. These guys are the real grassroots conservators of the forest. Talley has more than 100 species of medicinal plants. It also has 25 different species of rhododendrons found inside the Talley Wildlife Sanctuary. Rhododendron panginum is a rhododendron species endemic to Arunachal Pradesh and so far reported only in the lower Subansiri district and named after the Pange camp in Talley Wildlife Sanctuary. The area has some of the most important endangered species including the clouded leopard, Himalayan black bear and sero. हम लोग क्लाउडेड लियोपार्ड जो उसका एबंडेंसी का वजह से है, और जो कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि टाइगर भी बाईपास यहाँ में होते रहते हैं, वो कॉमन है। हिमालयन डियर है, सांबर है, और आपका लियोपार्ड है, बर्किंग डियर, हॉग डियर, वाइल्ड पिग, इंडियन पोर्कुपाइन, इंडियन पंगोलिन, जंगल कैट, लियोपार्ड कैट, मतलब कैट फैमिली का तो ऑलमोस्ट नहीं सब है ही। और टाइगर भी मतलब साइटिंग तो नहीं, कैमरा में ट्रैप हुआ है। Talley Wildlife Sanctuary also has various species of butterfly. More than 100 species of butterflies are found in Talley, including rare species like Bhutan glory, Kesari Hind, and brown gorgon. Every year, the Department of Forest works with local NGO Ngunu Zero to organize the Zero Butterfly Meet, which sees many butterfly enthusiasts from across the country. Ngunu Zero is one of the many environmentally motivated NGOs of the state. What makes the work of Ngunu Zero interesting is the way it works on grassroots level for generating awareness of the local environment protection and traditional importance of the forest cover. तितली देखने जाओ तो एक बहुत छोटा जानवर है। ट्रैवल उसमें देखा जाओ तो बहुत लोग ही चिड़िया के बारे में, तितले के बारे में बात करते हैं और उसके महत्व के बारे में बात करते हैं। तो वही उनको जानकारी देने के लिए, उसको अवेयरनेस देने के लिए ये हम लोगों ने जो 2014 में है, ये एक संस्थान है ngunu zero के करके, हम लोग दोस्त लोग मिल करके उसको ये जीरो बटरफ्लाई मीट के रूप में शुरू किया। 2014 से हम लोग मिल के यहाँ पर स्कूल के बच्चे लोगों को, कॉलेज के बच्चे लोगों को ला करके यहाँ पर सिखाते हैं और इस ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का महत्वता को बताता है, तितली का महत्वता को बताता है। सबसे पहले तो मतलब बटरफ्लाई का इतना आइडिया नहीं था। आई यूज्ड टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ बटरफ्लाईज। सिर्फ पता था कि दे आर डिफरेंट काइंड्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ में पार्टिसिपेशन करने मिला, उसके लिए मैं मतलब ngunu zero और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहता हूँ ना। उनके वजह से अभी यहाँ पे कैंप में एटलीस्ट बैठने को मिला। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है, मतलब आगे भी बरकरार होना है और फ्यूचर जनरेशन, कमिंग जनरेशन में वो लोग भी जितना हो सकेगा मास में पार्टिसिपेशन कर सकने से बहुत अच्छा होगा। और अवेयरनेस, जितना पार्टिसिपेशन करेगा उतना अवेयरनेस क्रिएट होगा, और जितना अवेयरनेस क्रिएट होगा उतना हम लोग मतलब वाइल्ड लाइफ को समझेगा और उनको हार्म नहीं करेगा, इकोसिस्टम को अच्छा से प्रोटेक्ट करेगा। तो वही यहाँ से वही ले जाऊंगे। ngunu zero also involves local communities in all the activities
and works on real long-term conservation activities. These organizations look at the conservation of butterflies in the sense of planting host plants and the balance of the ecosystem in a broader perspective. बटरफ्लाई मीट में हम हमेशा क्या सोचते, हम मेजॉरिटी हम लोग क्या लेता है, बटरफ्लाई मीट में जाना है, हाँ फोटो खींचना है, उसके बाद वापस जाना है ना, वही तो है ना, उसमें कंजर्वेशन पॉइंट नहीं है, कौन कहाँ में कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन चीज़ तो वही है कि जो उसका जो होस्ट प्लांट को हम प्लांटेशन कर रहे हैं, नेक्टरिंग प्लांटेशन कर रहे हैं, तो बटरफ्लाई भी तो नेक्टरिंग करके फिर वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना, रिप्रोडक्शन नेक्टरिंग करके उसका हेल्दी होगा, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फिर उसका कहाँ में अंडा गिराएगा, उसके लिए होस्ट प्लांट चाहिए होता है। तो होस्ट प्लांट को उसका मतलब उसको फिर रीजनरेट करना या ट्रांसप्लांट या उसको उगाना तो बहुत जरूरी है, तो उसको उस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगा, है कि नहीं। This year, Team Ngunu Zero did the first trip to Talley Camp to understand what type of butterflies could be found in high elevation areas of Talley Wildlife Sanctuary. And not surprisingly, they did come back with great news of possible new species in the higher elevation areas of the wildlife sanctuary. और पांगे एरिया में तो सब लोग जानते हैं ये बहुत अच्छा है तितली के लिए, बटरफ्लाई के लिए भी। हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है। एक ब्लू डफर बोल के स्पीसीज मिला जाने के टाइम पे, वहाँ पे जाके हम लोग को 3-4 वुड ब्राउन स्पीसीज मिला। तो और ये वुड ब्राउन लोग बोलते हैं इट्स ए सिग्नेचर स्पीसीज ऑफ द हिमालय। तो हिमालय छोड़ के दूसरा जगह वुड ब्राउन नहीं मिलता है। अगर हमको क्लाइमेट चेंज का स्टडी करना है हम लोग को, क्योंकि बटरफ्लाइज आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इवन मैं बोलूँगा द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हम लोग वुड ब्राउन पकड़ सकते हैं। वुड ब्राउन जो स्पीसीज ग्रुप उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो वो वुड ब्राउन हम लोग को काफ़ी सारे स्पीसीज मिला और डेट वाज ए वेरी गुड इंडिकेशन, मतलब टाली वैली में कितना स्पीसीज हो सकता है। एडिशनली हम लोग को काफ़ी सारा हैज ब्लूज मिला, जो ब्लूज बटरफ्लाई ग्रुप में आता है। तो वो मतलब पंख खुलने से ब्लू होता है, पंख बंद होने से व्हाइट होता है। वो हैज ब्लूज भी 3-4 स्पीसीज हम लोग को मिला। देखने में वो स्पीसीज ग्रुप सेम है, लेकिन हम लोगों ने जब देखा, क्योंकि इतना ऊपर में जाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको हैज ब्लूज वगैरह को अपर साइड अंडर साइड सब फोटोग्राफ लेके देखा। वो जो हैज ब्लूज ऊपर में है यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो भी टाली के लिए नया एडिशन था। ओवरऑल हम लोग को 4-5 न्यू स्पीसीज मतलब टाली वैली के लिए मतलब न्यू रिकॉर्ड एडिशंस इस बार वो टाली वैली से हुआ। अगर टाली वैली एक्सप्लोरेशन नहीं होता तो वो सब स्पीसीज टाली वैली में है बोल के हमको पता नहीं चलता। तो हम लोग ज़रूर फ्यूचर में वो टाली एरिया को मोर एक्सप्लोर करेंगे ताकि और कुछ नया मिल जाए। Nawang Gyatso Bhutia from Sikkim, who is president of Bamos Nature Conservation Society, who has also recorded his name in the Limca Book of Records for managing to get 95 different species of butterflies to perch on his fingers. इस बार का एडिशनल बहुत कुछ हुआ है। ऐसे मानिए ब्राउन फॉरेस्टर अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था यहाँ से, और ये ईस्टर्न कोटियर का फीमेल, एंड देन the Bhutan glory तो obviously it's like is a heaven in this Talley Valley. So and I have seen this time I have seen the host plant also. बहुत अच्छा हो रहा है। इधर कंजर्वेशन भी कर रहा है, होस्ट प्लांट भी प्लांटेशन किया है, मैं वो जगह भी गया और ब्राउन गोरगन का फीमेल भी देखा। वो फीमेल तो इतनी आसानी से नहीं दिखता है, जितना भी बटरफ्लाइज है वो फीमेल इतना आसानी से नहीं दिखता है। अनकॉमन होता है, कोई रेयर होता है, कोई वेरी रेयर होता है। सो इस साल तो वो भी देखा ब्राउन गोर का फीमेल एंड ईस्टर्न कोटियर का फीमेल, ये सब नया एडिशनल हो रहा है अभी। सो ताली वैली में मेरे को इतना एक्सपीरियंस मिला है यहाँ से, जितना भी स्पीसीज मिलता है। सो दिस आई कैन कॉल टू सेकेंड अमेज़न फॉरेस्ट। एंड देन ऐसे ही हम लोग ने वो आपतानी ग्लोरी भी देखा, इतना सुंदर है। और वैसी तरह जाइंट हॉपर का रीडिस्कवरी किया, और बाकी इतना सब कुछ है। ये यहाँ पर मणिपुरी जंगल क्वीन है, सो वो बड़ा साइज होता है। सो आई लाइक द फ्लाइट ऑफ दैट, यू नो, इट्स लाइक बट करके भागता है, कभी रुकता नहीं है। सो इट्स लाइक आई सिंग ओ ये हाय मणिपुरी जंगल क्वीन बोलता है कभी कभी, वो मणिपुरी जंगल क्वीन।
At this point of time, immense work is being done in Talley Wildlife Sanctuary to document the different species of ferns. Ashish Soni, researcher from the Botanical Survey of India in Talley, who is working on documenting species of ferns in the wildlife sanctuary for the last 2 years. कि जैसे ही आप एंट्री गेट पे टच करते हैं तो फंस आपका ऐसे मोस्ट वेलकम करते हैं जैसे कि आप कहीं हेवन में आ गए हो फंस के. तो दिस लाइक ए एडवेंचरिंग टू टाले. मतलब ये मेरा सेकंड विजिटिंग है और लास्ट ईयर के विजिटिंग टूर से मेरा मतलब 120 अक्रॉस स्पीसीज़ था और ये लास्ट टूर से अभी तक मैं समथिंग 60 स्पीसीज़ के और करीब पहुंच चुका हूं, जिसमें से मैं अभी तक 6 न्यू टू स्टेट भी दे चुका हूं और 1 न्यू टू इंडिया मेरा जो रिसेंटली पब्लिकेशन है खपोली फॉरेस्ट डिवीजन के साथ आने वाला है. Talley is also blessed with 8 different species of bamboo. Amongst them is Chimney Bambusa armata, recorded only in Talley Wildlife Sanctuary in the country. Talley is not just any wildlife sanctuary in Arunachal Pradesh. It is also a mythical place with traditional values for the locals. हमारा माइग्रेशन स्टोरी के अनुसार जीरो वैली अभी जहाँ आपातानी लोग बसे हुए हैं तो उधर आने से पहले तले वैली में था. तो तले वैली में 1-2 साल इधर आपातानी लोग बस गए थे. तो उन लोगों ने देखा कि जब धान लगा के देखा तो धान को पकने में 11 महीना लग रहा है. तो इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि यहाँ बसना मुश्किल है. तो फसल अगर जल्दी नहीं निकलता है तो हम क्या खा के बेचेंगे. इसलिए वो लोग सोचा कि यहाँ से और इससे ज़्यादा अच्छा एक जगह देखते हैं सोच के. Then they went to Zero Valley and settled down here. Talley is a conserved area and the access to the wildlife sanctuary has strict restrictions and rules applied by the Department of Environment and Forest, Arunachal Pradesh. वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का मुताबिक सेक्शन 31-32 में लिखा है कि यहाँ में एक्सप्लोसिव जो भी एक्सप्लोसिव चीज़ या वेपन्स वो सब लेके नहीं आना है. जो आते समय हम लोग उसको चेक भी करते हैं. तो चेक करते हैं और जो आने से हम लोग यहाँ में एंट्री भी करते हैं. एंट्री मतलब क्या आया है, कौन सा टाइप का वो मतलब विजिटर्स लोग आते हैं. तो फॉरेनर है ना, फॉरेनर का रेट भी अलग सा होता है. ये हम लोग का लोकल टूरिस्ट होने से लोकल टूरिस्ट का अलग सा रेट होंगे, स्टूडेंट्स होने से स्टूडेंट्स का अलग सा रेट. With an authorized valid permit from the Chief Wildlife Warden or other authorized officers, you can visit Talley Wildlife Sanctuary at any time of the year. Most times, during conservation efforts by the government, we have seen a lot of conflicts between traditional forest owners and the Department of Forest's conservation efforts. Many a time, the tribes residing in the area want to continue using the forest in the ways their ancestors used to, and the restrictions by the forest departments cause many clashes. In Talley, we found a different case altogether. Talley is a very special place for the local communities in terms of traditional values and cultural significance. That is why the Apatani people work together with the Department of Forest for the conservation and preservation of the sanctuary's rich biodiversity and natural resources. लकीली हमारे यहाँ आई थिंक अपतानीज का ही सारा क्रेडिट है इसमें कि एरिया को वो खुद कंजर्व करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके जो ट्रेडिशनल डिमांड्स भी हैं वो हमारे रास्ते में ही साथ आते हैं. वो चाहते हैं इस एरिया को नहीं ख़राब किया जाए. तो इस तरीके से कल्चर को भी मॉडर्न एफर्ट के साथ बहुत अच्छे से अमालगमेट कर दिया गया है ताकि दोनों अलग नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, इनफैक्ट एक दूसरे का साथ दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने का वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो कंजर्वेशन के लिए ही करते हैं. For everyone who works in Talley Wildlife Sanctuary or works for conservation in this area, Talley is more than a conservated area. It is a feeling. The longer you spend time with pure nature and its ways, the more you discover your true self. Nature does that to you. This is our story on Talley Wildlife Sanctuary, which is the safe haven for many rare flora and fauna of the world, and stands as a testimony of the dedication of the area's local communities and the Department of Environment, Forests
and climate change, Arunachal Pradesh. ताली नदी शांत है और वो इस तरीके से शांत है कि अगर आपको पता नहीं है वहाँ नदी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा वहाँ पे नदी है। तो ऐसी पहाड़ी नदी जो इस तरीके से शांत है वो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। वो देख के काफ़ी अमेजिंग थी। गाड़ी मोटरेबल नहीं है और ऐसा परमिटेड भी नहीं है, तो लेकिन तले पहुँचने का बाद लगता है कि वाह। आना तो बहुत तकलीफ है, मतलब तकलीफ तो बस इनिशियल पॉइंट में तकलीफ है, जब आ जाता है तो वो तकलीफ थोड़ा भूल जाते हैं। मतलब मेरा हार्ट एकदम ऐसा अटैच हुआ कि शायद मैं जब यहाँ से इसको रिज्वाइन करूँगा तो आँखों में आंसू भी आएंगे। ताले एंड पांगे, आई एम वेरी इमोशनली टच्ड विद दिस। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से इट। जितना बार आता हूँ इधर ही बैठने का मन करता है मेरे को, इधर से जाने का मन नहीं करता है। ताले वेले भी घूमने जाना है, उधर में अलग अलग ही नज़ारा है ना, तो उधर में घूमने आना है।